નમસ્કાર, હું આદર્શ છું. વેલકમ ટુ આદર્શ એજ્યુકેશન સોસાયટી. Hello dear students, how are you all? Standard 3, subject English, Unit 6, Traffic Lights. मैडम क्या लिखना भूल गए हैं? Part 2. Right? In the last previous video, we had completed a story about traffic lights. Right? हमने स्टोरी कंप्लीट की थी. किसके बारे में स्टोरी थी? 3 ट्रैफिक लाइट्स, रेड, ऑरेंज and green. Okay. In this video, we will going to learn activity 4. Answer the question based on our story traffic lights. So here you can see that number 1. How did red, orange and green have great fun together? वो तीनों कैसे great fun यानी कि enjoy कैसे करते थे? They control so many cars, scooters, rickshaws and buses, and they enjoy stopping the vehicles, letting the people cross and then allowing the vehicles to go. They work hard all day and have great fun together. Number 2, why did orange feel hurt and miserable? वो क्यों hurt हुआ और क्यों sad रहा? Because red and green and laughed to him and they told that they don't need him and he is useless. He means what? Orange light, right? Number 3. What happened when orange stopped working? जब orange ने काम करना बंद कर दिया तो क्या हुआ? There was chaos, C-H-A-O-S, on the busy road. Traffic come to a halt when they suddenly turned green. There was more confusion when orange stopped working. Done? Number 4 and D. What did the police officer say when he saw that orange was not working? The police officer said, why isn't orange working? Orange क्यों काम नहीं कर रहा है? Without orange, how can I control the traffic? Orange के बिना मैं कंट्रोल कैसे करूंगा ट्रैफिक पे? Then he switched the lights off. और उसने सारी लाइट्स बंद कर दी. Number 5 and E. What do you think red and green felt when they heard police officers' word? They realized that everyone is important in their own way. They were sorry for being rude to Orange and for what? They had said to him, without Orange, they were not a team. Okay. So, यहाँ पे हमारी एक्टिविटी 4 कंप्लीट होती है. जो थोड़ा बहुत नहीं समझ में आया वो हम जूम में डिस्कस करेंगे. ओके. सो नेक्स्ट वन इज एक्टिविटी 5. एक्टिविटी 5 में क्या है? रीड द फॉलोइंग वर्ड्स, ग्रुप ऑफ वर्ड्स, write them in the appropriate box. जो हमें ठीक लगता है हम नहीं वो करते थे. एनिमल्स को एनिमल्स में डालो, बर्ड्स को बर्ड्स में डालो, राइट? फाइंड आउट एनिमल्स एंड बर्ड्स, तो दोनों के नेम साथ में दिए होते हैं, लेकिन हमें क्या करना है? उसको उसके ग्रुप में डिवाइड. ओके. ट्रैफिक जाम, ये प्रॉब्लम कब आएगी? When the traffic is jam on the road, when all the 3 lights work, here you can see that. When all the 3 lights work properly, when one of the traffic lights stopped working. इन दोनों में से ट्रैफिक जैम कब आएगा? जब तीनों काम करेगी कि नहीं करेगी? Yes. सेकंड बॉक्स में when one of the traffic lights stops working, then the traffic is jam on the road. Okay. स्मूथ ट्रैफिक, फर्स्ट बॉक्स. व्हीकल्स फॉलो सिग्नल, कब सिग्नल फॉलो करेंगे? फर्स्ट बॉक्स व्हेन ऑल द 3 लाइट्स वर्क प्रॉपरली. डन? CHAOS, chaos. Number 2, people cross the box
people cross the road easily. Number 1, people getting confused. Second box, honking. चलो जाने दो, कब करेंगे? जब एक लाइट उसमें से प्रॉपरली वर्क नहीं करेगी, when one of the traffic lights stops working or not doing working. Okay, people getting confused second, honking second, and accident कम होंगे second box, right? So here activity 5 had completed, and now we will going to learn activity 6. Activity 6 में क्या है? On the page number 44, here you can see that one picture is given, right? So look at the view of the classroom from above. Now answer the following question. You can use words like front, back, left and right. ये 4 वर्ड का हमें यूज करना होगा. ओके, सो यहाँ पे आप देख सकते हो, मैडम आपको दिखा रहे हैं ये डोर, ये विंडो. ओके, आप भी अपनी बुक में देख सकते हो. यहाँ पे ब्लैक बोर्ड, चेयर, बुलेटिन बोर्ड, म्यूजियम टेबल, टीचर्स टेबल, चिल्ड्रन बैठे हैं, वहां पे डॉट डॉट किए गए हैं, राइट? यहाँ पे चिल्ड्रन, ये राइट साइड, ये लेफ्ट साइड, यहाँ पे विंडो. डन. ये यू कैन सी दैट द पिक्चर, ये आपकी बुक में भी पिक्चर होगा, तो अगर आप पिक्चर ओपन करेंगे तो आपको ये अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा. ओके, देख लिया सबने पिक्चर? डन. चलो, फर्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मेनी डोर्स एंड विंडोज आर देयर इन द क्लासरूम? हाउ मेनी डोर्स मतलब क्या? डोर्स कितने हैं? तो देयर इज 1 डोर. एंड विंडो ऑन लेफ्ट साइड, ए विंडो मतलब एक विंडो, अ विंडो ऑन लेफ्ट साइड एंड 2 विंडोज आर राइट साइड इन द क्लासरूम. तो आप देख सकते हो, राइट? मैडम को बुक में क्यों देखना पड़ता है? क्योंकि पिक्चर्स देखो ना, लेफ्ट हैंड साइड डोर, लेफ्ट हैंड साइड विंडो, राइट हैंड साइड 2 विंडो, तो हमें लेफ्ट राइट अलग अलग लिखना पड़ेगा ना, राइट? नंबर 2, वेयर आर द ब्लैकबोर्ड एंड कपबोर्ड? ब्लैकबोर्ड कहाँ पे है? सो फर्स्ट ऑफ ऑल ब्लैकबोर्ड इज बैक साइड फ्रॉम द चेयर, चेयर के पीछे, आप देख सकते हो. एंड कबर्ड मुझे तो नहीं दिखाई दे रहा है, आपको दिखाई दे रहा है? नहीं दिखाई दे रहा है मैडम, तो आंसर क्या लिखेंगे? देयर इज नो कबर्ड इन द क्लासरूम. डन. हाउ मेनी रोज ऑफ डेस्क आर देयर इन द मिडल एंड बैक रोज? रोज किसको बोलते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल इसको रोज बोलते हैं, और इसको क्या बोलते हैं? कॉलम. You can see that the difference between rows and columns, right? इसको रो बोलेंगे, इसको कॉलम बोलेंगे. तो यहाँ पे तो कॉलम दी गई है ना, तो चलो ऐसे अप एंड डाउन साइड से हम गिनते हैं. 1 2 3 4 5 6. दिखाओ ना पिक्चर. ये यू कैन सी दैट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. ओके, सो 12 रोज है, तो आंसर कैसे आएगा? देयर आर 12 रोज इन द मिडल एंड ऑन द बैक रोज ऑफ डेस्क. डन. एक्टिविटी 7. सॉरी, और एक पिक्चर दिया गया है. There are blank trees between the classroom and the playground. Here you can see that the picture, classroom and playground के बीच में कितने trees हैं? 2. The blank trees line are passage from the entrance. यहाँ पे entrance दिया गया है, इसके पास में कौन सा ट्री है? मैंगो ट्री. So answer is mango. Many blank trees are along the side of the playground. चलो साइड में देखो,
साइड में साइड में साइड में साइड में, यहाँ पे कौन से साइड में, गुलमोहर, तो उसका स्पेलिंग आपको थर्ड ब्लैंक में लिखना होगा। ओके, सो हियर यू कैन सी दैट आवर एक्टिविटी 6 had completed and we will going to learn activity 7. Use the map to answer the question. मैप का यूज करके हमें क्वेश्चन आंसर देने होंगे, राइट। फर्स्ट इज व्हाट डज द डॉटेड लाइन ऑन द मैप शो। डॉटेड लाइन क्या करती है हमें मैप में, देखो आप, द डॉटेड लाइन ऑन द मैप शोज द डिस्टेंस बिटवीन अजय's हाउस टू स्कूल। नंबर 2, विच रोड वुड अजय टेक टू गेट टू बोट क्लब। कौन सा रोड लेगा बोट क्लब पहुंचने के लिए, he should go कस्तूरबा गांधी मार्ग to get to the boat club. Number 3, which building is next to the picnic area? The India Gate is beside the picnic area, right? Number 4, which road passed by Ajay's house? अजय के हाउस से देखो कौन सा रोड पास होता है, yes, रिंग रोड। Ring road is passing near the Ajay's house. What other way could Ajay use to get from his house to his grandmother's house? एक तो रास्ता दिया गया है डायरेक्ट अशोका रोड, लेकिन वो नहीं चाहिए, अदर रोड बोला है, तो वहां से टर्न होगा कस्तूरबा रोड, कस्तूरबा गांधी मार्ग से होगा बोट क्लब, वहां से पिकनिक एरिया, वहां से स्कूल का रास्ता, फिर उसकी ग्रैंड मदर का हाउस। डन। सो द आंसर इज ही कैन टेक कस्तूरबा गांधी मार्ग, देन क्रॉस द बोट क्लब, देन गो टू पिकनिक एरिया, देन टर्न फ्रॉम स्कूल एंड रीच द ग्रैंड मदर्स हाउस। आपको ये चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैडम आपको ये फेयर बुक में लिखा देंगे। डन। चलो, यूज वर्ब लाइक गो, टर्न, क्लोज। Use preposition like across, between, in front of, beside, near, behind. तो वो तो यूज करना ही पड़ेगा, राइट। सो इन दिस वीडियो क्या क्या देखा, एक्टिविटी 4, एक्टिविटी 5, एक्टिविटी 6 एंड एक्टिविटी 7 है कंप्लीटेड एंड ऑल्सो, और क्या सीखे, डिफरेंस बिटवीन रो एंड कॉलम। सो ऑल द एक्टिविटीज 4 to 7 had completed and also Unit 6 Traffic Lights Part 2 had completed. Thank you for joining us.